स्पेशली गाइज हिस्ट्री वगैरह की क्लास होती है ना, तो पिछली क्लास का वीडियो फास्ट स्पीड पे देख लिया करो, सो दैट एक कंटिन्यूटी बनी रहे, यू विल गेट अ रिवीजन, बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी माइंड में. ओके, सो वी विल गो टू हिस्ट्री, बट बिफोर दैट जस्ट टेक टू क्लास 8 SST history, chapter 11 national movement. Okay, firstly I am presenting the questions that Ritvik had raised. Okay, Tasmia, good evening. So the first question is, it is in which group? Revision? यस सर, रिवीजन ग्रुप में जस्ट ऊपर स्क्रॉल करना है, जस्ट. Okay. Yeah. Okay. Right. First question is quite easy. Second, I'll explain to you guys. Here question है और मैं. So how many people can do this question? Tell me. Okay. The question is this. Yeah. All right. Ritvik, you read the question. Okay, sir. 5 liters of water is filled in each of these containers shown in the figure. Which of the following proportionality is correct? Okay. वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट कंटेनर, ये एक्चुअली फॉर्मूला होता है सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है v पाई r स्क्वायर h, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट. So this is actually easy question. Okay, how many people want to attempt this? Let me just check. Right. So all those who know, just write IK. All those who have no idea, just write IDK. Abhinav is there in the class or not? No. Okay, long life. Abhinav, long life. I was just mentioning Abhinav is there in the class or not. All right. Good evening, sir. Good evening. Abhinav, एक क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया है. So have a look at this. If you know, write IK. Otherwise, write ID. Okay. शिव, गुड इवनिंग. शिव यार टाइम से आया करो क्लास में. एक क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया है. लुक एट दैट. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. करो फटाफट करो. चंदेल इज आल्सो नॉट. यार क्लास में ना बच्चे थोड़ा डिसिप्लिन की कमी है, पंक्चुअलिटी की कमी है. Okay, right. So I can see a lot of people have written IDK. I don't know, it should not be, but because I think it's a conceptual thing, so I'll explain to you. अरे ऋत्विक यार जल्दी क्लास ज्वाइन करो. सर ये अभी कर रहा है. मैम करा दी जल्दी जल्दी. अभी ज्वाइन कर रहा है सर. ओके. Right. So let me stop sharing firstly. Okay, guys, just this is a very simple concept. This is a very simple concept. I'll explain this to you. This is called concept of proportionality. Arnav, class. This is called concept of proportionality. दोस्तों होता क्या है? Let us say, okay, let us say I have two numbers. I have a number A and I have a number B. And no matter what I do, their product is always constant. So what happens is, if A is equal to 2, then B will become half. So it will remain, A into B will always remain 1. I'm just taking a very easy example. If I change A to 3, B will become 1 upon 3. If I change A to 4, B will become 1 upon 4. Because ये constant है. ये constant है. ठीक है प्रभुगुण, तस्मिया, understood? ये constant Yes, है. sir.
तो अगर ये बंदा ऊपर जाएगा तो ये बंदा नीचे आएगा, यही हो रहा है। अगर A2 है तो B is 0.5, अगर A3 है तो इफ A is 3 B is equal to 0.33। देखो ये कम होता जा रहा है, ये 0.5 था 0.3, अगर A is equal to 4 B is equal to 0.25। So what happens is if A increases B decreases, so we call this a reverse proportion। So this is 1 A is equal to 1 upon B। Now in this question which I had presented, which I think Arnav has missed. Arnav, there is a question we are discussing. It's a very interesting question, very important question, especially kids who stay in metro cities like Bangalore. For them these questions are more pertinent, because ऐसे स्कूलों ऐसे सिटीज में क्या होता है, टीचर्स ना अपने आप को ज्यादा प्रोग्रेसिव मानते हैं। उनको लगता है यार एज कम्पेयर टू गाजियाबाद, बैंगलोर का स्कूल तो थोड़ा लेवल हाई होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और एक्सपेक्ट किया जाता है मेट्रो सिटीज के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनका मेंटल इंटेलेक्चुअल लेवल थोड़ा सा शायद ज्यादा हो। रियलिटी तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन रहती है। अर्नव, ओके। सो क्वेश्चन बेसिकली ही सेइंग कि देयर आर 5 लीटर वाटर फिल्ड इन कंटेनर्स, और इस तरह से है, और एक फार्मूला भी दे दिया। अब ही सेइंग which proportionality is correct। Let us now look at this। So if you see the formula is actually 5 लीटर नहीं है, this is V लीटर, this वो कांस्टेंट ले रखा है ऋत्विक, ये कांस्टेंट ले रखा है सर। तो कहता है V is equal to pi r square h, वॉल्यूम is equal to pi r square h, वॉल्यूम is equal to pi r square h। Okay, now गुड इवनिंग सर। हाय गुड इवनिंग श्रीका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। सो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ओके, सो व्हाट आर द ऑप्शंस, लेट मी हैव अ लुक। ओके, एच और आर के बीच में रिलेशन चाहिए। सो अच्छा देखो, कभी भी ऐसा इट इज अलाउड, लेफ्ट हैंड साइड को आप राइट हैंड कर सकते हो, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड कर सकते हो, इट इज अलाउड टू यू। सो आई एम राइटिंग जस्ट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग बाय यू गाइस। Constant। Okay, out here we saw a situation in which AB is equal to constant। In fact, A into B is equal to constant। So if I take B to the other side, यहां पे मल्टी में, उधर जाके डीवी में होएगा, constant upon B। So what happens guys, if I want to remove this equal to sign, I'll have to remove the constant, and then I will write A is equal to 1 upon B। यानी कांस्टेंट हटा के फिर ये साइन लग जाता है, यहां आप करते हैं। तो यहां पे H इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन पाई आर स्क्वायर। नाउ आई विल रिमूव ऑल कांस्टेंट्स एंड चेंज द इक्वल साइन टू प्रोपोर्शनलिटी साइन। सो कांस्टेंट ये हटा दिया, इसकी जगह 1 रख लो, कांस्टेंट इंटू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इज ए कांस्टेंट 22 upon 7 or 3.14, हटा दिया इसको भी। I am only left with this, and this sign will now change to, so the right answer is answer A, Ritik। H is directly proportional to 1 upon R square। Yes, Okay, sir, now I come to your second question। Let me see how many people can do this question, because this question I had not covered when I was teaching this chapter. This I missed out, this one I don't know how I missed out, but this it is a slightly higher level question, not very high but okay। Yeah, ओके, श्रीका एक बार क्वेश्चन पढ़ दें, क्वेश्चन नंबर 2। श्रीका एक बार क्वेश्चन पढ़ दें। Ravi and Sonu can do a job alone in 20 days and 30 days respectively. In how many days the job will be finished if they work together? How many people know how to do this kind of question? Vansh, can you do it? Tasmia, Simran, sorry, Jia, Shiv? Sir, I will try. हाँ भैया, Jia, Shrika, Ritvik, anybody? Okay, there is a method to this question। There is a method to this question। I will teach anybody who says कि सर मेरे को पता है कैसे करना है, मतलब उसको किसी ने सिखाया है, that guy has been taught by somebody। All right, then I'll teach you। So what happens is when you have 2 people given, जनरली क्या होता है, जनरली तो अब तक हमने कैसे क्वेश्चन किए थे, हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे कि लेट्स से देयर आर 20 वर्कर्स,
they finish a work in 10 days. Sir, If there are 10 workers, हाँ screen, if there are 10 workers, so हमने वो कहा था, हमने कहा बॉक्स बना लो, ऐसा बॉक्स बना लो एक, और उसमें अपना फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे लिख लो वर्कर, यहाँ लिख लो डेज, ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 लगा दो। और क्योंकि जितने वर्कर बढ़ते जाएंगे डेज कम होते जाएंगे, तो इनवर्स प्रोपोर्शन है। और इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या है, एनीबॉडी रिमेंबर्स? If one increases, other decreases. से अगेन? नहीं वो तो ठीक है, वो तो कॉन्सेप्ट है, वो तो कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला है x1 y1 इक्वल टू x2 Y2. ये इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या था? x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2। एवरीबॉडी रिमेंबर्स दिस नाउ? सुपर मैच होगा भाई तुम्हारा। आई विल गिव गुड प्राइजेस टू यू गाइस, द विनर्स। सो दैट इज फ्रॉम माय साइड, दिस इंसेंटिव, एक्स्ट्रा इंसेंटिव कि भाई तुम लोग अपना रिवीजन अच्छे से करते रहो। सो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आसान था, लेकिन यहाँ इस बंदे ने क्या किया, इसने दो बंदे निकाले, दो बंदे क्वेश्चन। ओके, नाउ आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन टू ऋत्विक तावरी। ऋत्विक, आई एम प्रेजेंटिंग द स्क्रीन वंस अगेन। नाउ टेल मी ऋत्विक, he is saying Sonu can do the job in 20 days, right? Sonu, right? Sir, yes, 20 days. 20. So Sonu's 1 day work is how much, yaar? 1 upon 1 upon 20. 30. very good. And what is, नहीं सोनू का तो 30 था, Sir, ये तो सोनू रवि का का है, पहला नाम 30, रवि का है ना, रवि का रेस्पेक्टिवली लिखा रवि, तो जो पहले लिखा हुआ उसका पहले लेंगे रवि। तो रवि का 1 डे का वर्क है। अर्णव, ओके, इतना समझ में आ गया कि 1 डे का वर्क निकालना कैसे? भाई एक 20 डेज में वो बंदा एक काम पूरा कर रहा, 1 वर्क, तो 1 डे में कितना वर्क पूरा होगा? 1/20। हाँ भाई अर्णव, गॉट इट? अर्णव शर्मा, Yes, sir. अर्णव सिंह, Yes, sir. अभिनव, प्रभगुण, इस कॉन्सेप्ट में तो कोई इश्यू नहीं है? आद्या, नो इश्यू Yes, sir. सो फार? हाँ, ओके गुड, No issues, sir. ओके राइट। सिया, जिया, नो प्रॉब्लम? No, sir. शिव, No. हो जाएगा? 1 डे का वर्क, 1 डे का वर्क Yes, sir. निकाल लोगे? 1 डे का वर्क निकाल लोगे? ओके श्रीका, 1 डे का वर्क में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं ऋत्विक, क्या तूने मिस कर दिया? गुड इवनिंग ऋत्विक। शिव, तस्मिया, नो प्रॉब्लम इन दिस 1 डे वर्क? गुड इवनिंग ऋत्विक। तस्मिया, नो प्रॉब्लम 1 डे वर्क में? वंश, नो प्रॉब्लम 1 डे वर्क? No, sir. अब हम देखते हैं सोनू का एक दिन का काम कितना। ये तो रवि का हो गया। सोनू एक काम को 30 डेज में पूरा कर रहा है। सोनू कितने दिन में करता है? 30 डेज में। तो सोनू का एक दिन का काम हो गया, सोनूज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/30, 1 डे वर्क। अब ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो हम दोनों के एक दिन के काम को ऐड करेंगे। कैसे होगा देखो, सो आई विल ऐड दिस 1/20 प्लस 1/30। एलसीएम क्या आएगा दोस्तों? वेरी इजी, एलसीएम 20-30 का एलसीएम क्या आएगा? Sir, 60. 60। इसको तो नहीं समझाना पड़ेगा। अर्णव शर्मा, शुड आई एक्सप्लेन दिस एलसीएम कैसे निकाला? देखो यार, कितना भी सिली डाउट हो, मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है, मेरी क्लास में कोई डाउट सिली नहीं है। No, sir. No, sir. कुछ भी पूछ लो तुम लोग, यू गाइस आर एट फ्रीडम, एट लिबर्टी टू आस्क मी एनीथिंग। नो हाउ सिली इट इज डज नॉट मैटर। इट मे अपीयर सिली टू सम पीपल, नॉट टू मी। सो एलसीएम सबको पता है कैसे निकालना था, एलसीएम निकाले 60। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं। अगर इसको मुझे 60 बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नाउ दिस विल बिकम 3/60 एंड दिस विल बिकम 2/60। यार ये बताना मेरे को, खासकर नए स्टूडेंट जो मेरे हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुमको आता है ना फ्रैक्शंस को ऐड करना। तो ये होगा 3 + 2 = 5/60। ऋत्विक, एवरीबडी एल्स 5/60 को सिंप्लीफाई करके मेरे को चैट बॉक्स में लिख दो जल्दी से। 5/60 को सिंप्लीफाई करें जल्दी से, और लाइन खींच रहा हूं मैं। 5 4 3 2 1 ओपन। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। 5 का टेबल तो सबको पता है। 5 1 जा 5, 5 12 जा 12, 5 जा 60, 1/12। ओके, सो
अब इन दोनों ने मिलके जब काम किया तो रवि एंड सोनू टुगेदर, रवि प्लस सोनू जब व्हेन दे वर्क टुगेदर देयर वन डे वर्क इज 1/12. ठीक है ऋत्विक, नो प्रॉब्लम. Yes, sir. So they will finish the work in how many days? So see, 1 day work, nahin, sorry, unitary method, 1/12 work finished in days equal to 1. Unitary method, one work will finish in days equal to 1/1/12. So if you do 1 divided up by 1/12, so it will be 1 into 12/1. ऋत्विक, ऑप्शन दिया हुआ है. Okay, sir. Understood. ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे करना है. इन क्वेश्चन कई बार 3 लोग दे देगा वो, कई बार बोलेगा 3 लोग हैं, एक इतने में करा एक, तो कुछ नहीं करना, 1 डे वर्क निकालो हर एक का और ऐड कर दो, एंड देन दैट विल गिव यू. एक्चुअली तो देखते ही पता चल जाता है कि एक दिन का काम 1/12 है, तो 1 वर्क कितने में होगा, 1/12, 12 डेज में होगा. ओके, बट फिर भी यूनिटरी मेथड अगर दिखाना है एग्जाम में वर्किंग के लिए, इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन आते हैं इसके. सर एक सिंपल मैथ का डाउट था सर. x into 1/x, 1, sorry sir, x into 1/y is always equal to constant k. X into 1/y is constant. Yes sir. Yes sir. See, it depends. अगर मैं x की वैल्यू ले लूं कुछ 2 ले लिया और y की वैल्यू ले ली मैंने 2, तब तो कांस्टेंट तो आएगा, बट अलग अलग कांस्टेंट आ सकता है. तो ये 2 into 1/2 इक्वल टू 1 आ जाएगा. लेकिन अगर इसको ले लिया 3 तो ये आएगा 2/3. कांस्टेंट तो आएगा, कांस्टेंट तो आएगा, बट अलग अलग कांस्टेंट आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू. सर x by y k होता है ना, x upon y equals k. जनरली कांस्टेंट आएगा. तो सर अगर MCQ में आता है तो फिर तो कांस्टेंट ही कर सकते हैं ना. कांस्टेंट, हाँ, कैन राइट कांस्टेंट. ओके, एनी अदर डाउट गाइस? Sir, I have a doubt. ओके, गो अहेड. सर एक क्यूब है, उसका एज 4 सेंटीमीटर का है, एंड सर उसका डायगोनल निकालना है. सर कैसे निकालेंगे? हाँ, तो क्यूब का डायगोनल का जो फॉर्मूला है दैट इज क्यूब रूट ऑफ साइड, क्यूब रूट ऑफ वन साइड. डायगोनल, एक मिनट हो, नहीं, गिव मी 1 सेकंड टू थिंक. स्क्वायर का तो होता है 2 हाँ, into 3, साइड into क्यूब रूट 3, साइड मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट 3. ओके, राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम से. बट वो 3 डायमेंशनल है ना क्यूब, तो 2 डायमेंशनल स्क्वायर में निकाल सकते हैं. ओके सर. हाँ, 3 डायमेंशनल क्यूब में निकालते, स्क्वायर में निकालते हैं अपन पाइथागोरस से, बट क्यूब में 3 डायमेंशनल हो जाता है. ओके, चले भाई आगे चलते. ओके, दैट सो yesterday guys what I had covered was that in 1857 the revolt took place. I will just use yesterday's notes to this, just to quickly brush over it. Okay. रिवीजन में मैंने भेजे होंगे नोट्स पक्का कल, नहीं मीट ग्रुप में शायद से भेजे थे. या नहीं, ये चैप्टर नहीं, जस्ट मैंने कल नोट्स भेजे भी थे कि नहीं भेजे थे यार, तुम लोग चेक किया कि नहीं? सर करंट चैप्टर के ना, हिस्ट्री वाले चैप्टर के नहीं सर, शायद नहीं भेजा आपने. तो यार तुम लोग नोट्स नहीं, देखो मैं बताऊं तुम्हें, अगर नोट्स नहीं बनाओगे ना तो तुम्हारे को नहीं आएगी क्लैरिटी. नोट्स इज असेंस है, और ये 15 मिनट के नोट्स है सिर्फ. जस्ट टेक्स 15 मिनट्स टू मेक दीस नोट्स. तो तुम लोग एहसास नहीं कर रहे हो इस बात का कि कितना कुछ मिस आउट कर रहे हो तुम. एक बार नोट्स बनाना तो शुरू करो,
तुम हर चीज तुम्हारे ना ऐसे आएगी उंगली, तुम बोलो सर ये तो बिल्कुल आसान लग रहा है, एक्चुअली बहुत बार होता है। लोगों को ना उसकी किसी चीज का ना वो वैल्यू जो बेनिफिट्स होते हैं समझ नहीं आते। जैसे योगा एक ऐसी चीज है जो बंदा करने लगता है ना, फिर कहता है यार किसी ने मेरे को पहले बता दिया होता, काश काश मैं पहले बता होता, इतना टाइम मैंने वेस्ट कर दिया। सो ये भी ऐसे ये जो नोट्स वाली कॉन्सेप्ट है, तो मैं जो बनाता हूँ बिल्कुल इजी नोट्स हैं, राइट। सो शेयरिंग नाउ, सो वी स्टार्टेड, या 1905 नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इसको बंद करो, इसको बंद करो, बंद करो, उसको बंद करो, उसको बंद करो। ओके, राइट। ओके दोस्तों, इफ यू रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट दिस। अब पहले तो मैं तुम्हें कहानी सुनाई थी कार्ट्रिज क्या होता है भैया, कार्ट्रिज अलग होता है, बुलेट होती है, ये बात करी थी। उसके बाद बोला 5 मई को 1857 में शुरू हो गया रिवोल्ट। मेरठ से सिपाहियों ने मार्च करना शुरू किया, एंड इट टुक देम 3-4 days एंड दे रीच्ड दिल्ली एंड दे टोल्ड बहादुर शाह जफर। बहुत बीमार था बहादुर शाह जफर, 70 ज्यादा एज हो चुकी थी और तबीयत ठीक नहीं थी। उसको आके उसका जो आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ हिज जनरल, ही केम एंड सेड कि दीस गाइस वांट टू मीट यू। ही सेड मेरे से क्या लेना है यार इनको। बोला नहीं, वो बोल रहे कि आप बादशाह है, आपको बादशाह बनाएंगे। तो मना कर दिया उसने, वो फिर आ गए, बोले नहीं मान नहीं रहे बादशाह। तो भाई बादशाह बहादुर शाह जफर को बना दिया, मान लिया। और उसके बाद रिवोल्ट शुरू हो गया। तुम्हें ये पता होगा बहादुर शाह जफर को उसके बाद गिरफ्तार कर लिया था, उसके बेटों की गर्दन काट के दिल्ली में खूनी दरवाजे से टांग दी थी। और जब उनकी बेटे की गर्दन काट के एक अंग्रेज ऑफिसर वेंट टू हिम in a tray, and the tray was covered with a cloth, and he said, "I got a surprise for you, which you'll never forget in your life." And then he removed this thing. So he had 3 sons, all their throats were cut, and they were there in the tray. And thereafter they were hanged in the Khuni Darwaja in Delhi to terrorize the people and tell them to never do this again. Okay, so this all happened. But by June 58 में झांसी, Rani Jhansi was killed. Tanta Tope was killed. He was hanged. And Peshwa Bajirao ran away to Nepal. Many, like most of the people were like defeated and killed. नवंबर 59 में रिवोल्ट खत्म हो गया और 1 नवंबर को लॉर्ड कैनिंग्स ने एक दिल्ली में दरबार किया और प्रोक्लेमेशन पढ़ के सुनाया क्वीन एलिजाबेथ का, और बोला कि भाई ये 11 पॉइंट्स दिए थे उसने कि भाई अब हम एक्सपेंशन नहीं करेंगे, तुम्हारी सोसाइटी में नहीं करेंगे, सबको इक्वल लॉ मिलेगा। और जितने प्रिंस हैं, जो कुछ प्रिंस थे जिन्होंने कि वो थोड़ा सा म्यूटनी में पार्टिसिपेट किया था, उनको माफ कर दिया, जनरल एमनेस्टी बोलते हैं उसको, आम माफी दे दी गई सबको। सभी सारे इंडियंस को आम माफी दी गई एक्सेप्ट दोज पीपल हु हैड डायरेक्टली यूज वायलेंस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। जिसने किसी ने किसी को मार दिया, किसी इंग्लिश लेडी का रेप कर दिया, बच्चों को मार दिया, किसको भी मारा, तो वायलेंस अगर यूज करी तो माफी नहीं है। अदरवाइज जनरल माफी, कहीं जा रहे थे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो सब माफी कर दिया गया। ये कर आके वो उसने बताया, ठीक है भाई। और अब इंडिया के अंदर इतनी दहशत, मुझे बताया कि ऐसा जो एक बहुत फेमस राइटर है विलियम डैलरिम्पल, दिल्ली में रहता है वो अभी भी। उसके लिए एक बुक लिखी, उसमें लिखा हुआ है कि देयर वाज नॉट अ सिंगल ट्री along the banks of Ganga and Yamuna where a dead body was not hanging. इतना टेरराइज हो गए तो इंडियंस की हालत खराब हो गई, फिर इंडिया बिल्कुल शांत हो गया। उसके बाद एक व्हाइट म्यूटनी हुई थी इसके बाद 1859 में, जो व्हाइट्स ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ कर दिया कि तुम इंडियंस को इतना अपीज कर रहे हो। उसकी वजह से इंडिया, जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, वो खिलाफ हो गए थे ब्रिटिश के। चलो वो सब छोड़ देते। सो इंडियंस को उठने में बहुत टाइम लगा यार। तो कब सबसे पहला इनका जो वो आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1873 में। तो उसमें बोला कि भाई कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ कुछ छापेगा तो उसकी मशीन सब हम ले लेंगे, बंद कर देंगे उस पेपर को। 78 में लीगल आर्म्स एक्ट आया कि किसी भी इंडियन को अलाउ नहीं था आर्म्स रखना। और 83 में एक इल्बर्ट नाम का बंदा था, उसने बोला कि यार ये इंडिया में जो ब्रिटिशर्स हैं उनको इंडियन जज को अलाउ होना चाहिए, ट्रायल करना, उनका केस सुनना, लड़ना, उसमें जजमेंट देना। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने मना कर दिया उसको। तो ये 3-4 चीजों से लोगों में बहुत गुस्सा आ गया। अराउंड दिस टाइम पीपल आर मेकिंग ऑल दो सभा बना रहे थे। और एक बंदा था, इसका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम, आईसीएस का ऑफिसर था। रिटायरमेंट के बाद उसने क्या किया कि उसने कहा यार एक ग्रुप बनाते हैं। तो ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग, मैंने बताया WC बनर्जी, तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और BC बनर्जी, सब 5-6 लोग थे। इन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया, उसका नाम रखा कांग्रेस। और उसको पहले कुछ और मैंने बोलते थे, बाद में उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस बोला। और
उसका जो फर्स्ट कन्वेंशन था वो पुणे की बजाय फिर बॉम्बे में किया, 72 लोग आए थे। दैट वाज एंड द डेट वाज 28 दिसंबर 1885। पार्टी बन गई, हर साल कन्वेंशन हो लेगा। लेकिन ये लोग अभी तक मॉडरेट्स थे, बिल्कुल रिक्वेस्ट करते रहते थे अंग्रेजों को, यार ये कर दो, ये वॉर पे खर्चा कम कर दो, जो हमारे सोल्जर्स उनको थोड़ा बढ़ाओ, उनकी सैलरी बढ़ा दो प्लीज, हमारे लोगों को काउंसिल में ले लो थोड़ा सा, 2-4 लोगों को, और हमारा हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ाओ, इस टाइप की चीज। लेकिन 1905 यानी 20 इयर्स होते होते, एंड दिस फेज इज नोन एज द मॉडरेट फेज। सो 20 साल होते होते 25 इयर्स, ये सॉरी, अच्छा एक और पॉइंट मैंने बताया था, वाइस रॉयल जो है उसकी फुल फॉर्म थी वाइस रॉयल। वो था जो क्वीन थी उसका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था इंडिया के अंदर। ओके, सो मॉडरेट्स ने 1905 तक अपना चलाते रहे जिस तरह चला, लेकिन आते आते लोगों में गुस्सा आना शुरू हो गया, और गुस्से के बाद दो ग्रुप्स में बट गया कांग्रेस, नरम दल और गरम दल से आगे बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र, लाला लाजपत राय पंजाब, एंड बिपिन चंद्र पाल अपना कलकत्ता, बंगाल का एरिया। तो उन्होंने कहा यार ऐसे काम नहीं करेगा, ब्रिटिशर्स के खिलाफ थोड़ा हमें अपने को ज्यादा खाना पड़ेगा, थोड़ी वायलेंस की जरूरत पड़े तो वायलेंस भी करते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, और करेंगे, इनको समझाएंगे, इनको मारपीट के भाएंगे। दोनों में लड़ाई होनी शुरू हो गई 1906 में, जिसमें होता है सूरत का जो वो था, सूरत के अंदर जो वो हुआ कन्वेंशन हुआ, जो मीटिंग हुई, उसके अंदर ये शायद से सुरेंद्रनाथ बनर्जी बोल रहे थे, तो उसी ने चप्पल मारी, फेंक के उनको, जूता मारा, उनको लग गया, और साथ में एक और उसको दो को लग गया, तो इससे वहां लड़ाई शुरू हो गई, लोगों ने अपने दूसरे ऊपर चेयर वेयर फेंकनी शुरू कर दी, भयंकर लड़ाई हो गई, और उसी साल ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गई कांग्रेस। Moderates were on one side, extremist or revolutionary Karamdal was on the other side, and they remained separated till 1915. Around this time, इंडियन मुस्लिम लीग, सर सैयद अहमद खान, हाँ, जो कि इंडियन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे, जिन्होंने हेल्प की थी अंग्रेजों की। 1857 में अंग्रेजों ने उनको सर का टाइटल दिया, बहुत पैसे दिए और रेस्पेक्ट दी और सब कुछ दिया। उनको लगता था सर सैयद अहमद खान को कि यार ये मुस्लिम्स के लिए एक अलग कंट्री बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी बाद में। उनका इस थॉट प्रोसेस था, उसी थॉट प्रोसेस को आगे चलते 1906 में इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना। मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि बाद में ही कॉल्ड कायदे आजम इन पंजाब, इन पाकिस्तान, कायदे आजम मतलब फादर, जैसे हमारे फादर ऑफ द नेशन, वो पहले कांग्रेस ही थे, वो कांग्रेस ज्वाइन की थी उन्होंने, बाद में वो बैरिस्टर थे, लंदन से पढ़ के आए थे, उसी कॉलेज से पढ़ के आए थे, कैम्ब्रिज से, जहां से जवाहरलाल नेहरू पढ़ के सर सर महात्मा गांधी सर लॉयर थे ना? महात्मा गांधी भी लॉयर थे, तो ओके ये महात्मा गांधी लॉयर थे, लॉयर बैरिस्टर ऐसे बोलते हैं, उस वक्त बैरिस्टर वर्ड ज्यादा यूज होता था। सो ये भैया आ गए, मोहम्मद अली जिन्ना भी पार्ट हो गया, फिर इसका इंडियन मुस्लिम लीग कहने लगे भाई हमें तो अलग चाहिए, हमारे जहां जहां मुस्लिम एरियाज हैं, जैसे ईस्ट बंगाल है, वेस्ट पंजाब है, ये जो एरिया है यहाँ पे हमारे बंदे खड़े होंगे मुस्लिम्स, और कोई दूसरा नहीं खड़ा। इन्होंने ऐसी डिमांड रखी, ब्रिटिशर्स को चाहिए था डिवाइड एंड रूल करना था। 1905 में वेस्ट बंगाल का कर्जन ने डिवीजन पास किया, इंडियन से अपोज किया उसको, तो ये मान गई 1909 में IML इंडियन मुस्लिम लीग की एक मांग एक्सेप्ट कर ली। पर धीरे धीरे लोगों में गुस्सा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ब्रिटिशर्स मैनिपुलेट करते थे, हर चीज से कुछ गेम खेलते थे सबको करने के लिए, इंडिया को लूट रहे थे बुरी तरह से। सो 1915 आते आते इन लोगों के अंदर एक लगा कि कांग्रेस जो स्प्लिट होगी उसको दोबारा इकट्ठे आना चाहिए, ताकि एक फोर्स बन जाए। अभी तो हमें यूज कर रहे हैं उसको, उसके खिलाफ, तो हमें इकट्ठे आना चाहिए। तो दे केम टुगेदर इन लखनऊ कन्वेंशन 1915 में, दे केम टुगेदर, एंड इंडियन मुस्लिम लीग आल्सो स्टार्टेड सपोर्टिंग कांग्रेस इन देयर डिमांड अराउंड दिस टाइम। दिस वाज द टाइम व्हेन महात्मा गांधी केम बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका. He came in December 1915 and 16 he went around the countryside. देखा कंट्री देखा, तब तो पता चल चंपारण के अंदर जो इंडिगो नील उगाने वाले किसान हैं, इंडिगो फार्मर्स हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उनको बहुत मारा पीटा जा रहा है, उनको जबरदस्ती उनसे इंडिगो की फार्मिंग करा रहा है। इंडिगो की फार्मिंग इसलिए कराते थे ब्रिटिशर कि वो बहुत महंगी बिकती थी, इंडियन जो इंडिगो बहुत हाई क्वालिटी की होती थी, अच्छी चमक उसके अंदर अच्छी आती थी। तो गांधी जी वहां पे गए, चंपारण का पहला सत्याग्रह गांधी जी का सत्याग्रह था, जहां वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिले और वहां पे कांग्रेस जो जो फार्मर्स थे उनके साथ मिलकर ग्रुप बनाया, सबका एक्शन किया। देयर आफ्टर द सेम ईयर ही वेंट टू
गुजरात, द प्लेस कॉल्ड खेड़ा। खेड़ा में उन्होंने, वहां खेड़ा में भी ये दिक्कत थी कि सूखा पड़ गया था। खेड़ा के किसान बोले थे अंग्रेजों को यार टैक्स माफ कर दो, वो मान नहीं रहे थे। तो वहां जाके काम किया गांधी जी ने उनके साथ मिलके, एंड देन दे मेट सरदार पटेल। 1917 मिल वर्कर्स की जो एक स्ट्राइक हुई उसमें फिर गांधी जी ने अपना पार्टिसिपेशन दिया 1917 में अहमदाबाद में। दीज आर द फर्स्ट थ्री movements. Now, if you remember, 1914 the World War I has started, and 18 it ended. Britishers had requested Indians in Congress to please help us, support us during the war. We will give you more power, more autonomy after after the war. And what Indian wanted were the home rule. वो बोलते थे home rule, बोला हमें हमारी काउंसिल जो हमारे स्टेट चलाने की हमें परमिशन दे दो, हम इंडिपेंडेंस नहीं मांग रहे, लेकिन वहाँ जो रूल रेगुलेशन है वो हमारे हिसाब से चलना चाहिए। तो ब्रिटिशर्स ने बोला हाँ दे देंगे दे देंगे दे देंगे। 1918 में एक और the new thing, a new episode started. The Turkey lost power. Turkey was part of the Byzantine Empire, which sorry, not Byzantine, Ottoman Empire. Ottoman Empire started sometime around 15 something, and it expanded like anything. So, what a very powerful empire. It's a Muslim Islamic empire, and the king of Turkey was known as the Caliph in the entire Islam world. एंड ही हैड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। वो जो भी फतवा बोलते हैं, जो भी उनका जो डिक्री निकल जाती थी, ऑर्डर, वो माना जाता था पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सो उसको अंग्रेजों ने उसकी पावर वो छीन ली। पहले तो उसके राजा से हटा दिया, उसको बोला ये भी तुम ये नहीं करोगे तुम। तो इसके लिए पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर लोगों में गुस्सा आना शुरू हो गया, और उन्होंने इंग्लिश ब्रिटिशर्स के इस जो डिसीजन को खिलाफ उसके खड़े हो गए, और इसका नाम दिया गया खिलाफत मूवमेंट। सो मार्च 1919 में बंगाल में अपना बॉम्बे में मोहम्मद अली शौकत अली, दो भाई थे, उन्होंने एक नया मोर्चा, एक क्लब खड़ा किया, इसका नाम बोला खिलाफत मूवमेंट, और उसका अपोज करने लगे। इस वक्त तक गांधी जी को लगा कि यार हमें इस देश में कुछ तो अब करना चाहिए। तो उनको तीन उसका मूवमेंट का एक्सपीरियंस हो गया था, देश भी देख लिया, तो उनको लगा अब मैं कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि हम जो है सिविल डिसोबीडियंस करेंगे। उसके पीछे रूट ये था कि 1909 में जब वो साउथ अफ्रीका में थे, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, इसका नाम था स्वदेश। स्वदेश में उन्होंने लिखा था कि इफ इट इज बिकॉज ऑफ द कॉपरेशन ऑफ द इंडियंस दैट द ब्रिटिशर्स आर एबल टू स्टे इन इंडिया, इफ द इंडियंस स्टॉप कोऑपरेटिंग विद ब्रिटिशर्स विल हैव टू लीव इंडिया विद इन 1 ईयर। और उनको आके उनको लगा कि अब मैं एक्सपेरिमेंट अपना शुरू करता हूँ। तो उन्होंने बात करी इससे अपना जो खिलाफत मूवमेंट के उनसे, इंडियन मुस्लिम लीग को पास लेके आए, बोला यार देखो हम तुम लोगों के खिलाफ ही गलत कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स तुम्हारा जो कैलिफ है, खलीफा है, उसके खिलाफ ये गलत काम कर रहे हैं, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे और तुम हमें सपोर्ट करो। तो हिंदी मुस्लिम यूनिटी बनाने की उन्होंने कोशिश की, और हिंदी मुस्लिम यूनिटी बन भी गई। तो 1918 का पूरा साल 17 तक ये पूरे इंडिया घूमते रहे। कौन? गांधी जी और शौकत अली ने जाके गांव शहर जाके बोला कि भाई देखो अभी मूवमेंट शुरू होगा, तुम लोग रेडी हो जाओ। तो ये हो गया ना। यहाँ तक की मैंने बात तुम लोगों से खत्म कर दी थी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आई थिंक थोड़ा सा और मैंने क्या कहा था, यही था बस। मैंने सो एंड आई लेफ्ट यू विद द वर्ड कॉल्ड रोलैट एक्ट। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड ऑन दैट। अब इसको खत्म करके देन विल स्टार्ट विद द नोट्स। आई होप सो वी कैन स्टार्ट द नोट्स टुडे। सो 1919 रोलैट एक्ट इन इंडिया। एंड रोलैट एक्ट में पावर किसको दे देगी? पुलिस को। और कितनी पावर दे गई? स्वीपिंग पावर्स। किसी को भी गिरफ्तार कर लो, किसी को भी अरेस्ट कर लो, तुम्हारे पास पावर है। अच्छा, पहले ये रूल था कि किसी को गिरफ्तार किया, आपने अरेस्ट किया, तो आपको उसको मजिस्ट्रेट को सामने लाना पड़ता था कि भाई इसको हम इसके ऊपर ये चार्ज है। तो रोलैट एक्ट ने इतनी पावर दे दी पुलिस को, पुलिस पावर बढ़ गई बहुत ज्यादा। अब 2 इयर्स तक पुलिस किसी को भी जेल में डाल सकती थी बिना किसी सबूत के, बिना किसी सामने। 2 years. Now the entire country got angry with this because they had expected a better response. उन्हें लगा था कि अंग्रेज हमारे साथ अच्छा करेंगे, हमने इनकी हेल्प की वॉर में, और ये वॉर जीत गए अभी, तो हमारे को इनको थोड़ी पावर देनी चाहिए, हमें थोड़ी सी फ्रीडम देनी चाहिए। वो दिया नहीं उन्होंने। सो 6 अप्रैल को गांधी जी ने बोला, 6 अप्रैल 1919, MG says non-cooperation, not civil disobedience, non-cooperation मूवमेंट। एनसीएम शॉर्ट में लिख रहा हूं, एनसीएम लॉन्च कर दिया पूरे देश में।
हर जगह हड़ताल होने लगी, ट्रेन चल रही है, ट्रेन के सामने खड़े हो गए लोग, ट्रेन के ऊपर सामने लेट गए, पटरी के आगे जाके प्रोटेस्ट निकलनी शुरू होगी, सब गदर मचना शुरू हो गया। अच्छा, उस टाइम बिकॉज लाल बहादुर अपना लाला लाजपत राय वाज इन पंजाब, so Amritsar was a very very important city for the Indian movement. Amritsar, very important city. Amritsar was almost, ये समझो, it was more important than Delhi almost. Amritsar. So अमृतसर में एक मेला लगता है 13 अप्रैल को, वो हर साल लगता है। उस दिन होता है बैसाखी, बैसाखी का मेला लगना था उस दिन। और 6 अप्रैल की घटना को देखते हुए वहां का जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा मूवमेंट हो रहा था, तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रही थी। वो प्रोटेस्ट को देखते हुए अमृतसर की जो कमांड थी, एक ऑफिसर थे, उनका नाम था जनरल डायर। जनरल डायर को पावर दे दी गई, वहां का कमांड दे दी गई। जनरल डायर ने अराउंड 11 अप्रैल ये ऑर्डर निकाले कि नोबडी विल गैदर टुगेदर, नो असेंबली, कोई इकट्ठा नहीं होगा भाई। जनरल डायर का बहुत ही खतरनाक सा एक रेपुटेशन था। एक लड़की थी, उसका नाम मेरे को बार बार मैं भूलता हूँ, शेरना कुछ तो था उसका नाम, बताऊंगा अभी, टाइम थोड़ा बचा रहा हूँ। तो उस लड़की को किसी ब्रिटिश लड़की थी, उसको छेड़ दिया था किसी ने, ऐसा बोला कि छेड़ दिया गया। तो वहां पे एक स्ट्रीट थी जहां उसको छेड़ा गया था, स्टेला नाम था उसका, स्टेला और कुछ तो डायर ने गुस्सा दिखाने के लिए और इंडियंस को उनकी औकात दिखाने के लिए ये बोला कि इस स्ट्रीट पे से कोई भी इंडियन वॉक करके नहीं जाएगा। तो होता क्या था, वो छोटी सी स्ट्रीट थी, और वो स्ट्रीट को अगर नहीं तुम्हें करना, यहाँ से यहाँ जाना है दूसरी जगह, तो छोटी, लेकिन अगर जाओगे तो बहुत घूम के जाना पड़ता था, तो लोगों को बहुत इनकन्वीनियंस थी। तो उसने बोला यहाँ पे क्रॉलिंग ऑर्डर चलेंगे, ऑल इंडियंस विल क्रॉल ऑन दिस स्ट्रीट इफ दे वांट टू क्रॉस दिस स्ट्रीट। ये जनरल डायर इस टाइप का बंदा था। और उसका एक और रूल था कि जब भी किसी ब्रिटिशर को देखेगा इंडियन तो सैल्यूट करेगा, मतलब ब्रिटिश इंडियंस को ह्यूमिलेट करने का उसका एटीट्यूड था। तो उसने 18 अप्रैल बोला कोई नॉइस, कोई असेंबली। एक्चुअली अभी अमृतसर में लोग आ रहे हैं, अमृतसर में लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, सबको पता है, तो लोग अलग अलग विलेजेस से आ रहे हैं। अब विलेजेस को नहीं पता कि यहाँ क्या ऑर्डर लगे हुए, विलेज को नहीं पता, तो विलेजर तो अपना आए, अपना नौ बैसाखी का मेला देखने आए। तो यहाँ पे एक जलियांवाला बाग है, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जाने के लिए एक छोटी सी गली है, और यहाँ बाग है, यहाँ एक कुआ है, यहाँ एक वेल है, और यहाँ लोगों का मेला लगा हुआ था। यहाँ पे कोई रेडी वाला लगा हुआ है, कोई पकौड़े बेच रहा है, यहाँ पे कोई समोसे बेच रहा है, कोई टॉयज वगैरह बेच रहे हैं, लोग यहाँ से आते हैं। तो 13 अप्रैल को जब खबर लगी जनरल डायर को कि बहुत सारे इंडियंस इकट्ठे हो गए जलियांवाला बाग में, तो उसको लगा कि यार ये तो साला, ये तो मेरी बेइज्जती है, मैंने ऑर्डर दिया, मेरे को। तो व्हाट ही डिड इज ही केम विद हिज सोल्जर्स एंड एंटर्ड हियर एंड क्लोज दिस गेट, एंड आई थिंक ही हैड अराउंड 250 सोल्जर्स। तो उन सोल्जर्स को यहाँ सबको खड़ा कर दिया, and he ordered them to take a firing position and set fire. So now it is said that I think 2,500 bullets were fired and people were killed. Aim लेके फायर किया गया था. So a lot of people jumped in this well to save themselves from the bullets. Because होता क्या है, मैं तो बुलेट्स देखी है, मैं तो बुलेट्स में रहा हूँ, बॉम्ब्स में भी रहा हूँ, क्योंकि मैं सियाचिन में रहा हूँ और कारगिल में रहा हूँ। जब बुलेट चलती है ना, तो ऐसी साउंड आती है कि बंदे का दिल की धड़कन एक सेकंड के लिए रुक जाती है। ओके, जब आप फायर करो, स्पेशली जब राइफल का फायर होता है, तो पिस्टल फायर में नहीं उतनी आवाज आती, राइफल की फायर बहुत तगड़ी आवाज आती है। तो लोगों, अब जो सिविल लोगों ने आज तक गोली देखी नहीं थी, वो गोली चल रही है धड़ 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 करके, तो पीपल स्टार्टेड जंपिंग इनटू दिस एंड लॉट ऑफ पीपल गॉट किल्ड बाय दिस ओनली। क्योंकि ऊपर से बंदा कूद गया कोई, अब नीचे बच्चे थे, औरतें थी, जो भी था, उनके ऊपर बंदे कूदे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग उसमें मर गए। I don't remember exact number. I think 850 or something people died in this. And as a result of this, the entire nation erupted in a violence. लोगों को गुस्सा आ गया, लोग गांधी जी बोलते थे नॉन वायलेंस, वो लोग ना भाड़ में जाए नॉन वायलेंस, ये लोग अंग्रेज ऐसा करता, उनको कहीं अंग्रेजों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ट्रेन जला दी, कुछ जला दी, कुछ जला दी। और इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली, अराउंड 20th अप्रैल 26 अप्रैल को ये गांधी जी ने वापस ले लिया। महात्मा गांधी withdraws.
NCU, non cooperation एक्सक्यूज मी movement. सर Yeah. सर जो जब लाइक ये जालियांवाला बाग का मैसेकर हो रहा था तेरी आवाज बड़ी कम आ रही है, जस्ट एडजस्ट द माइक, है ना? सर अब आ रही है हाँ, थोड़ी सी बेटर हुई है. ओके सर लाइक जब ये मैसेकर हो रहा था तो लाइक जो भी गेट्स थे मैसेकर, वहाँ पे मैसेकर, हाँ मैसेकर. जो मैसेकर भी वर्ड बोलना है, बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, कॉन्फिडेंस. मैसेकर, हाँ बोल. यस सर तो लाइक उन वहाँ पे गेट्स के पास ब्रिटिश सोल्जर्स थे और सारे गेट्स बंद कर दिए थे राइट सारे गेट नहीं थे, गेट एक ही था, एक ही एंट्री थी. बाकी यहाँ दीवार है, मैंने देखा है जलियांवाला बाग, यहाँ बड़ी बड़ी दीवारें हैं, चारों तरफ दीवारें, एक ही गेट है बस. उस गेट पे एक खड़ा हुआ फायरिंग कर रहा था. सर एक भी सर सर्वाइवर नहीं था ना? मुझे, हाँ जहां तक मुझे, कोई भी बंदा, एक भी बंदा बचा नहीं. शायद तो कुछ इंजर्ड बचे होंगे, थोड़ा बहुत, एक आधा कोई गिर गिरा गया होगा, तो इंजर्ड कुछ बचे होंगे. ठीक है, राइट गाइस, ओके, चले आगे चले. ओके, सो ये गांधी ने क्या किया, गांधी ने बोला यार अभी तो इसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ले रहे थे वापस, और क्योंकि इतना ज्यादा वो हो रहा है, इतना ज्यादा वायलेंस हो रहा है, तो लोगों ने कहा भाई ठीक है. गांधी ने कई बार किया, ये लॉन्च किया, वायलेंस होगी, फिर वापस ले लिया, उससे भी थोड़ा सा लोगों को, बट फाइनली सक्सीडेड, सो क्रेडिट गोज टू महात्मा गांधी. सो ये 20 अप्रैल को हो गया एंड विड्रॉ हो गया नेशनल कॉपरेशन. अच्छा, उसके बाद कुछ टाइम के बाद इसको फिर से लॉन्च किया गया. सो नाउ इट वाज लॉन्च्ड समवेयर अराउंड February of 1921, रीलॉन्च कर दिया. फिर से लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, प्रोसेशन हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, चलता रहा. ये तकरीबन 1 साल तक चलता रहा. लेकिन एक जगह है जिसका अच्छा, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर ध्यान रखना, इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग दोनों के दोनों इकट्ठा काम कर रहे थे, चलता रहा. यूपी में एक जगह है, इसका नाम है चौरा चौरी. चौरा चौरी, चौरा चौरी एक यूपी में है, ईस्टर्न यूपी में, गोरखपुर के पास है. तो ये कुछ लोग वहां प्रोसेशन निकाल रहे थे अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, तो पुलिस ने उनके ऊपर डंडे बरसाने शुरू कर दिए. और पुलिस ने जब उन पर डंडे बरसाए, कुछ गोलियां भी चलाई, तो लोगों को आगे गुस्सा. लोगों ने क्या किया, चौरा चौरी में एक पुलिस चौकी थी, पुलिस स्टेशन था, उसको लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया और फायर लगा दी. और उस आग के अंदर, दिस आई थिंक दिस हैपेंड 21 फरवरी को ही घटना हुई. 22 में, 21 में शुरू हुआ था, 22 में, एंड 26 policemen got killed, 26 killed in that fire. Gandhi came to know of this. Gandhi said, stop the movement because it is getting too violent. So again the movement was stopped. Right. अब से क्या होना शुरू हुआ, इस वक्त पे क्या था कि दुनिया के अंदर, लोगों के अंदर ना थोड़ा थोड़ा सा, एक्चुअली तुम लोगों को पता होगा डिप्रेशन शुरू हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन 29 में हुआ था. लेकिन इंडिया के अंदर भी जो फसल का जो वो है, बढ़ना शुरू हो गया था कीमत, क्योंकि जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो टैक्स बढ़ा दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, हर चीज महंगी कर दी, क्योंकि उनको पैसे देने थे जो वॉर में लगे थे, लोगों से उधार लेके. एवरी गवर्नमेंट बोरोज मनी टू फाइट वॉर. सो ये धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़नी शुरू होगी लोगों के अंदर. लोग, अभी कोई मेजर मूवमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन लोग परेशान थे. इसी वक्त अराउंड 1920, हाँ जी सर मेरे को पूछना था कुछ. एक सेकंड रुक जाओ, एक बात बता रहा हूँ. 27 सितंबर 1925 में एक ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ, इसका नाम था RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ. एनीबडी हर्ड ऑफ दिस? RSS का नाम सुना किसी ने? RSS जो है बीजेपी का मदर ऑर्गेनाइजेशन है. तो जैसे मोदी जी भी हैं, RSS के प्रचारक हैं. RSS जो है प्रचारक, मतलब इसका मदर. सर मिलिटेंट, सर हिंदुत्व फोर्स ऐसा कहते हैं वो. हाँ, कुछ लोग वर्ड यूज करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ऐसे नहीं यूज करना चाहिए. ऑलराइट. और इसी टाइम पे, अराउंड दिस टाइम, अनदर पार्टी कॉल्ड CPI वाज फाउंडेड. तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस अकेली पार्टी थी, CPI. या ऋत्विक क्वेश्चन. सर नाथुराम Nathurama Godse was it is said that he was a member of RSS. Yeah. सर जो मिजोरम वगैरह वाली साइड थी सर, वहां पर पहले कुछ डेवलपमेंट हुआ था क्या, या फिर बस ट्राइबल्स थे?
वहां तो बिल्कुल ट्राइबल थे, टोटल ट्राइबल। और वो जगह ऐसी थी, उसको ब्रिटिशर्स भी ब्रिटिशर कह रहा हूँ, मुगल्स भी उसको वो नहीं कर पाए। नॉर्थ ईस्ट कभी किसी के अंडर में नहीं आया, नॉर्थ ईस्ट और अफगानिस्तान, ये दो कंट्री ऐसे हैं, दो दो रीजन ऐसे हैं, इनको कोई वो नहीं कर पाता, क्यों? सब जंगल था, सब मच्छर, हाथी, घोड़े, ये सब चीज चलती रहती थी। ठीक है ऋत्विक? एंड ऑल सर जो राइट। मैसेजेस होते थे जैसे नेशनल मूवमेंट कॉल ऑफ हो गया, यानी विद्रॉ हाँ, हो गया टेलीग्राफ तब तक टेलीग्राम वगैरह आ गए थे, टेलीग्राफ और न्यूज़पेपर आ गए थे, न्यूज़पेपर छप रहे थे, न्यूज़पेपर छपते थे, तो उसमें निकल जाता था गांधी जी ने आज मीटिंग करी और सारे के सारे। इसकी तो फिर वीडियो वगैरह भी आ गई ना, इस टाइम की तो वीडियो वगैरह है, तब तक वो आ गया था, कैमरा आ गया था, मूवी कैमरा आ गया था। ओके ना, अच्छा तो क्या होता है फिर, ये तो हो गए। अच्छा अब क्या हुआ, नए नेता उभरने शुरू हो गए उसमें, कांग्रेस में। अब तक जो है नेहरू जी का कुछ वजूद हो गया। अच्छा अच्छा, एक एक और इसमें एक और पॉइंट है कि नेहरू के जो फादर थे, यू मस्ट बी अवेयर, मोतीलाल नेहरू वाज द रिचेस्ट मैन इन इंडिया और वन ऑफ द रिचेस्ट दैट टाइम। या Sir, did you click the picture? Yeah, I did. Motilal Nehru was the very rich person. It is said when the Jawaharlal Nehru was studying in London, and the college had 4 gates. I don't know how far this is true. 4 gates, and there was used to be a car waiting at every gate because nobody knew, like they didn't know आज कौन से गेट से निकलेंगे नेहरू जी, तो वो हर जगह कार है जैसा कहते हैं। एंड ही डेफिनेटली, दिस इज डॉक्यूमेंटेड फैक्ट that Motilal Nehru was the first person in India to buy a car. Okay, or he used to live in Anand Bhavan, which is in Allahabad, and right now it is a museum. It's a big museum, Anand Bhavan. So he, Motilal Nehru, and with another person called Motilal Nehru, and another person called some Ghosh. I'm not getting the first name now. These people said कि यार हम लोग फालतू में ये सब नॉन कॉपरेशन करते, वी शुड फाइट इलेक्शंस। अब तक क्या हुआ, इलेक्शन होने शुरू हो गए थे प्रोविंशियल असेंबलीज के, पूरे इंडिया के अंदर प्रोविंसेस बनी हुई थी, यूनाइटेड प्रोविंस यानी यूपी, सेंट्रल प्रोविंस मतलब मध्य प्रदेश, बंगाल प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, ऐसे प्रोविंस थी, उनके इलेक्शन होते थे। तो इन्होंने बोला आप काउंसिल के इलेक्शन लड़ो, फाइट इलेक्शन, और काउंसिल के अंदर जाके चेंज करने की कोशिश करो जो भी चेंज करना चाह रहे। ठीक, तो मोतीलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1928। अच्छा, गांधी जी भी एक बार प्रेसिडेंट बने थे सिर्फ, और वो बने थे 1919 में, नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने से पहले जो कन्वेंशन हुई उसमें महात्मा गांधी वाज द प्रेसिडेंट, कांग्रेस के प्रेसिडेंट एक बार बने बस। जवाहरलाल नेहरू वाज बिकेम प्रेसिडेंट 4 times। ओके, सो 28 में थे मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट, और नेक्स्ट ईयर थे 1929 में जवाहरलाल नेहरू, हिज सन जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ना जवाहरलाल नेहरू जब वहां प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने ये कहां हुआ था, ये हुआ लाहौर में। लाहौर में एक रिवर है जिसका नाम है रावी, इंडिया से ओरिजिनेट होती है लेकिन वो बाद में पाकिस्तान चली जाती है। तो रावी रिवर के पास ये एक सम्मेलन हुआ, और इसमें जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि अब अंग्रेजों से हम इतना गुस्सा हैं कि हमें अंग्रेजों से अभी होम लीग नहीं चाहिए, होम रूल नहीं चाहिए, वी वांट टोटल फ्रीडम, पूर्ण स्वराज। तो यहां नारा दिया गया पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट राज हमारा होगा, सेल्फ रूल, कंप्लीट सेल्फ रूल। ओके, और ये डिक्लेरेशन कर दिया गया, और ये डिसाइड किया गया, एक दिन डिसाइड किया गया कि हम इसको डे को सेलिब्रेट करेंगे, पूर्ण स्वराज डे को। और वो डेट क्या डिसाइड किया गया, 26 जनवरी, 26 जनवरी को डिसाइड किया कि भाई हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। 26 जनवरी 1930 हो गया अभी, क्योंकि दिसंबर में होता था, मैंने बताया तो सारे कन्वेंशन दिसंबर में होते थे। तो बोला कि डिसाइड 26 जनवरी को इन लोगों ने सबने बोला कि हम ऑर्गेनाइज करेंगे, हर जगह कांग्रेस के लोग खड़े होंगे और बोलेंगे कि मैं शपथ लेता हूं, मैं ओथ लेता हूं कि जब तक पूर्ण स्वराज नहीं मिल जाएगा हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, और ये सब करते रहेंगे। ठीक है, तो दिस वाज सपोज टू बी इंस्पायर द एंटायर नेशन। पर नेशन की दिक्कत क्या होती है दोस्तों, नेशन जो है अपना खाने पीने में, टीवी देखने में, मोबाइल खेलने में ज्यादा बिजी रहता है। ठीक है, गप्पे मारने में, चाय पीने में। ये सारा का सारा ऐसा नहीं कि जब हमारे देश के अंदर स्वतंत्रता की लड़ाई चली तो सारा देश भाग रहा था,
बहुत कम लोग होते हैं, 5% 10%, वही जो राजनीति के काम करते हैं, कहीं वहां झंडा फहरा दिया, वहां जरा, बाद में थोड़े लोग और बढ़ गए थे, क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह बहुत बढ़ गए थे, लेकिन सारा देश फिर भी नहीं लगता, फिर भी बहुत लोग होता है रहने मेरे को सोना यार, इतनी ठंड में कौन जाएगा पुलिस के डंडे खाने, बस। सो जब ये डिसाइड हुआ कि भाई स्वतंत्रता का ये मनाया जाएगा आंदोलन, तो लगा सबको कि बहुत कुछ होगा, लेकिन हुआ नहीं कुछ, ठंडा सा कुछ रिस्पॉन्स आया। अब ठंडा रिस्पॉन्स देख के कांग्रेस घबरा गई, महात्मा गांधी घबरा गए, उन्होंने बोला सुनो कुछ और करना पड़ेगा। तो 30 जनवरी को उन्होंने एक लेटर लिखा। किसको लिखा लेटर? जो उस वक्त वाइस रॉय था, और वो था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा गया, किसके द्वारा? गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने एक लेटर लिखा और उसके अंदर गांधी जी ने 11 डिमांड रखी। और डिमांड में क्या क्या डाला? अब देखो गांधी जी बड़े तेज थे, उन्होंने कहा यार सबको अपने साथ लेके चलना है, तो ऐसा करते हैं, सबकी डिमांड डाली। किसानों की डिमांड कि भाई टैक्स कम करो, ये कम करो। जमींदारों की डिमांड कि भाई तुम ये कम करो। ट्रेडर्स की डिमांड कि भाई फॉरेन का सामान आ रहा है यहाँ पे इंडिया में नहीं बिकना चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्रियलिस्ट की डिमांड कि हमारे कंपटीशन मिल रहा है तुम्हारे सामान से, वहां से सब दिक्कत करो। और एक डिमांड जो डाली गई वो उससे देश का हर आदमी परेशान था, वो था सॉल्ट। सॉल्ट ब्रिटिशर्स का रूल था, सॉल्ट का एक्ट था कि भाई नोबडी कैन मेक सॉल्ट अदर देन द ब्रिटिश एंड दे विल सेल द सॉल्ट एट द रेट दैट दे वांट। टैक्स लगा के बेचते थे उसमें। और भाई सॉल्ट तो गरीब मजदूर भी खाता है और राजा भी, मतलब जमींदार है वो भी खाता है, एवरीबॉडी इज अफेक्टेड। तो गांधी जी ने इसको बोला कि भाई सुन ऐसा है, अगर तो ये हमारी डिमांड नहीं मानी गई, 23 मार्च का डेट दिया, 23 मार्च की डेट दे दी कि भाई तब तक हमें आप ये सारे के सारे डिमांड अपनी अलग ये वापस मानो, हमारी डिमांड मांगो। तो महात्मा गांधी के लेटर के अंदर जैसे मैंने बोला 11 डिमांड थी, और उसको टाइम दिया था कुछ तो होता है, कुछ मार्च का टाइम दिया। बोला अगर नई डिमांड मानी गई तो मैं एक मार्च शुरू करूंगा और देश के अंदर जो उपद्रव होगा उसके लिए यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। इरविन ने कहा बाहर में जाओ, तुम लोगों की मैं केयर नहीं करता, तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं। इरविन ने सुनी नहीं। सो 23 मार्च को गांधी जी ने शुरू किया, आई थिंक 750 पीपल्स के साथ एक मार्च शुरू किया, या 200 समथिंग थे, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा। तो गांधी जी ने शुरू कर दिया। और कहां से चले? ये चले अहमदाबाद से। अहमदाबाद, तब अहमदाबाद में रहते थे, वहां पे उनका आश्रम था, साबरमती आश्रम था उनका, वहां रहते थे गांधी। महात्मा गांधी स्टार्ट्स एंड दिस इज 19 वी आर टॉकिंग अबाउट 1930। Gandhi starts, Mahatma Gandhi starts with I think 270 people, but wherever he was going through the villages, and this took them around 15 days. 6 अप्रैल को ही पहुंच गए डांडी करके एक जगह है भुज में, और वहां पे सॉल्ट बनता है। सॉल्ट बनाने में क्या है, समुद्र का पानी आता है, उसको भर देते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसे फैला के, वो सूख जाता है, उसको उठा लेते, फिर उसको साफ करके घोल गाल के उसका प्रोसेस है बना। तो गांधी जी वहां देखा, वो वहां पहले से पड़ा हुआ था सॉल्ट टूलता, गांधी जी के आदमी सॉल्ट, और पूरे देश के पूरे वर्ल्ड के रिपोर्टर साथ साथ चल रहे गांधी, वो मैं क्लिप दिखा दूंगा बाद में। तो 6 अप्रैल को दांडी मार्च पहुंच गए गांधी जी, और 6 अप्रैल को उसके साथ ही पूरे देश में दोबारा से एक नया आंदोलन शुरू कर दिया। ओके, अब बस यहाँ से मैं छोटा सा जल्दी कट कर देता हूँ क्योंकि मैं आज इसको स्टोरी खत्म करूँ, थोड़ा सा टाइम आगे। सो इसके बाद नेक्स्ट जो बड़ी चीज हुई, उसके बाद हुआ भी कुछ, गांधी जी ने कहा कि इरविन ने बुलाया, ये लंदन में कॉन्फ्रेंस हो रही है, सबको बुला के एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब कि सब बराबर हो, सबको बराबर ऐसे बैठा हुआ, ब्रिटिश यहाँ बैठे हुए, गांधी इधर बैठे हुए, अम्बेडकर इधर बैठे हुए, हिंदू महासभा के लोग इधर बैठे हुए, अलग अलग पार्टी को बुला के सबको एक राउंड टेबल पे कर दिया। मेरे को एक मैसेज है 9th वालों को, हाँ 5 मिनट डिले, ओके। तो इनका क्या चक्कर था, अंग्रेज कोशिश करते थे कि सबको गेम खेलते रहे, सबसे मैनिपुलेट करते रहे, किसी तरह चलाते रहे। अरे यार कांग्रेस तुम्हारी बात सुने, आरएसएस की सुने, या हिंदू सभा की सुने, किसकी बात सुने, या कम्युनिस्ट पार्टी की बात सुने, या तुम लोग आपस में डिसाइड, ये सब करते रहे। तो गांधी जी को बुलाया उन्होंने कि भाई लंदन में कॉन्फ्रेंस करी 1931 में जनवरी में, तो वहां जाओ फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में। गांधी ने मना कर दिया। उसके बाद फिर गांधी जी मान गए सेकंड राउंड टेबल के लिए, उसको बोलते गांधी इरविन पैक्ट, दोनों का पैक्ट हो गया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अभी बंद कर रहे हैं, अभी झगड़ा बंद कर रहे हैं, तो हमारी बात मान लेना। इरविन ने बोला हाँ मान लेंगे।
गांधी जी गए वहां पे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। गांधी वापस आ गए। गांधी वापस आ गए, देखा क्या, नेहरू जेल के अंदर, पटेल जेल के अंदर, सबको जेल में ठूस रखा है अंग्रेजों ने। और देश में, और कांग्रेस को इलीगल बैन लगा, कांग्रेस बोला इलीगल है, बैन कर दिया कांग्रेस को, ठीक है। ये सब कहानी चलती रही। उसके 1935 में एक बहुत बड़ा काम हुआ इंडिया के अंदर। एक रूल आया जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ब्रिटिश ने बनाया, और इसी के बेस पे हमारा फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना है बाद में। इसके लिए काफी कुछ लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इससे। देन दिस गोज ऑन around 1942 Gandhi says enough is enough, we have to now move the Indians out, British out of India. Around this time September 1939 में एक वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया, पर पोलैंड पे अटैक कर दिया इसने, अपने हिटलर ने, और अटैक शुरू हो गया। फिर बोला ब्रिटिश ने, यार हेल्प करो हमारी कांग्रेसियों को। कांग्रेस ने बोला हम नहीं करेंगे तुम्हारी हेल्प इस बार, ठीक है। तो चलता रहा, फिर बीच में थोड़ी बहुत हेल्प की बात भी मान ली, ये सब हुआ। 42 में गांधी जी ने बोला क्विट इंडिया, निकलो इधर से अभी इंडिया। बहुत बड़ा मूवमेंट किया गया, बहुत बड़ा क्विट इंडिया मूवमेंट, पूरे देश के लोग शामिल हुए इसमें। फिर अंग्रेजों को लगने लगा अब तो आजादी देनी पड़ेगी। फिर 1945 में कैबिनेट मिशन आया इंडिया में, उसने बोला कि ठीक है कैसे देनी है तुम लोगों को आजादी यार, वो डिसाइड करेंगे, ये सब करता रहा। और एक डेट डिसाइड करी गई 1 जून 1946 तो हम क्या बोला, हम फ्रीडम दे देंगे। तब भी नहीं, बट तब तक ये हो गया था, अब पता चल गया था कि हाँ ये, उधर जिन्ना बोला था कि हमें तो अलग पाकिस्तान चाहिए, तो वो सब कहानी चल रही थी। और फिर ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ जुलाई में 46 में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, B.R. अम्बेडकर उसके वो बने, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। और 15 अगस्त 47 को अंग्रेज चले गए, चले नहीं गए, मतलब अंग्रेजों ने कहा भाई आज से आपकी गवर्नमेंट है। हालांकि तभी भी वॉइस रॉय तो थे, माउंटबेटन बने रहे वॉइस रॉय कुछ टाइम के लिए, जब तक कि उनको पावर देने का वो किस्सा पूरा नहीं हुआ था। तो भाई ये कहानी है हमारे नेशनल मूवमेंट की, ठीक है। इसमें मैंने मेजर जो इवेंट्स थी आपको समझाई। कल से हम इसको शुरू करेंगे, इसका जो रीडिंग पार्ट है। फिर भी कुछ छोटे मोटे पॉइंट आएंगे तो उसको बताऊंगा। अच्छा मुझे बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समझने में कोई इशू तो नहीं है? आद्या clear so far? Please watch the video tomorrow guys, both days video you should watch before coming, then you will enjoy and you will learn also। but फिर याद रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब ऐसे याद हो जाएगा। आद्या गोयल, It's clear, sir. ओके। अभिनव, ऋत्विक चंदेल, कंफर्म करो सब लोग। सर क्लियर। ऋत्विक क्लियर सर। सर क्लियर। अर्नव शर्मा, क्लियर सर। अर्नव सिंह, सर क्लियर। जिया प्रभगुन, ऋत्विक तावरी, जिया क्लियर? क्लियर। सर क्लियर। ऋत्विक क्लियर। शिका, सिया Yes, sir, clear. क्लियर? सिया, Yes, शिव, sir, clear. ओके। शिव, तस्मिया, वंश। Yes. तो दिस इज द स्टोरी ऑफ आवर कंट्रीज इंडिपेंडेंस। आपको पता होनी चाहिए चाहे सिलेबस में हो या ना हो। मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि ऐसी तरह पढ़ाऊं अपने बच्चों को, बच्चे इंटरेस्ट लें, और उनको कल को कुछ पूछे तो मेरे बच्चे ऐसा ना हो सर ये क्या है, माय स्टूडेंट शुड नो एंड टॉक, बी एबल टू टॉक इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड से नहीं 1919 में तो ये कहानी हुई थी सर, ठीक है। whenever you talking to somebody relative or somebody, ठीक है। so you guys so इंटरेस्ट लेके पढ़ो, और दिस इज एक्सीलेंट चैप्टर एंड आई वांट कि इसमें से जो भी क्वेश्चन आए यू शुड बी एबल टू डील विद इट, ठक ठक ठक। चलो ओके, टुमारो वी विल स्टार्ट विद दिस। एनी डाउट्स प्लीज ब्रिंग इट टू मी बिफोर द क्लास, गिव मी द डाउट्स। पहले डाउट आए तो भेज दिया करो, उस विल सेव द टाइम। ओके राइट गाइस, गुड नाइट एवरीवन एंड वी मीट टुमारो। ऑलराइट, बाय बाय। आद्या, अभिनव, ऋत्विक, अर्णव, Bye, sir. Good night. सिया, Bye, sir. Good night. बाय बाय, बाय वंश, बाय सर बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट।